Good afternoon, everyone. Am I audible? Good afternoon, Karuna sister. Yes, you are audible. Thank you so much for joining the Diwali stage with the sister. आज कई दिनों बाद हम लोग मिले हैं ना। हाँ जी। ओम ओम शांति। ओम जी, शांति। आपके एग्जाम्स हो गए हैं अभी? हाँ हाँ, हो गए कंप्लीट। अच्छा, आप लोग सब कैसे गए कैसे हैं? सभी? सब ठीक है? हाँ, हाँ, हम अच्छे गए। ठीक है। जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी जी। Sit back comfortably. Take a deep breath in, deep breath out. Focus on your breathing. Take a deep breath in, and as you exhale, release all the tension from. Take another deep breath in, and as you exhale this time, release all the tension, all the negativities, any anger or uneasiness. Release it completely with your exhale. Now focus between the center of your forehead and repeat these lines in your mind. In the infinity of light where I am, all is perfect, whole, and complete. I am one with the power that created me. I have within me all the ingredients for success. I now allow the success formula to flow through me and manifest in my world. Whatever I am guided to will be a success. I learn from every experience. Whatever I am guided to will be a success. I learn from every experience. I go from success to success and from glory to glory. My pathway is a series of stepping stones to ever greater success. All is well in my world. Thank you. Om Shanti. Let me share the screen now. Is my screen visible? हाँ जी सिस्टर। Thank you. So today we will start chapter 13, Prosperity. Last year we have completed till chapter 12 of this book. So we have completed a major part of this book. And after completing this one, we will start a new book. Last chapter we did was success.
and today we will start chapter 13, Prosperity. I deserve the best and I accept the best now. I deserve the best and I accept the best now. कितने लोग ऐसा सोचते हैं खुद के बारे में कि मैं बेस्ट डिजर्व करता या करती हूँ। तो ये कुछ भी पाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, ये एक हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। खुद के ऊपर ट्रस्ट होना, खुद की कैपेबिलिटीज के ऊपर अपने आप को डिजर्विंग मानना, अपने आप को वर्दी मानना। इस बुक में हमने सेल्फ लव को लेकर काफी कुछ सीखा और उसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन अस। अपने इनर वर्ल्ड को हमें अच्छा रखना है, अपने बारे में अच्छा सोचना है। तो आई डिजर्व द बेस्ट। If you want the above affirmation to be true for you, then you do not want to believe any of the following statements. तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, आई डिजर्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट द बेस्ट नाउ, ये सच हो जाए, तो अभी जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मिलेंगे इनके ऊपर बिलीव नहीं करना। जैसे मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये प्रॉस्पेरिटी के ऊपर है, इसीलिए हमें लैकिंग या लिमिटिंग बिलीव्स को हटाना होगा, तभी हम प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर पाएंगे। मनी इज इविल, आई एम पुअर बट क्लीन और गुड, rich people are crooks, I don't want to have money and be stuck up, I will never get a good job, I will never make any money, money goes out faster than it comes in, I am always in debt, poor people can never get out from under, my parents were poor and I will be poor, artists have to struggle, only people who cheat have money, everyone else comes first. Oh, I could charge that much. I don't deserve. I am not good enough to make money. Never tell anyone what I have in the bank. Never lend money. A penny saved is a penny earned. Save for a rainy day. A depression could come at any moment. I resent others' happiness. Money comes. Money only comes from hard work. How many of these beliefs belong to you? तो अभी जब हमने स्टेटमेंट्स पढ़े, इनमें से कितनी बिलीव ये है जो हमारे खुद के बिलीव है, हमने अपने बना के रखे? डू यू रियली थिंक दैट बिलीविंग एनी ऑफ देम विल ब्रिंग यू प्रॉस्पेरिटी? अगर हम इन स्टेटमेंट्स को बिलीव करेंगे तो क्या ये हमें प्रॉस्पेरिटी अचीव करने में हेल्प करेगी? इट इज ओल्ड लिमिटेड थिंकिंग। तो ये सारे स्टेटमेंट्स है ओल्ड लिमिटिंग थिंकिंग के, मतलब ये हमें लिमिट कर देते हैं। Perhaps it was what your family believed about money, because family beliefs stay with us unless we consciously release them. Wherever it came from, it must leave your consciousness if you want to prosper. तो इसमें से कई सारे बिलीव ऐसे हैं जो हमारे अंदर में हमारी फैमिली की वजह से आए हैं। तो फैमिली की वजह से बिलीफ सिस्टम का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग होती है वो बचपन से ही हम ये सब सुनते सुनते बड़े होते हैं, तो हम भी इन चीजों पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। पर ऑथर का कहना है कि अगर ये हमारे बिलीफ सिस्टम है भी, तभी भी अपनी कॉन्शियसनेस से इनको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, इन लिमिटिंग बिलीव्स को, ताकि हम प्रॉस्पर कर पाए। टू बी ट्रू प्रॉस्पेरिटी बिगिंस विथ फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। तो ऑथर कह रही है कि उनके लिए ट्रू प्रॉस्पेरिटी कब स्टार्ट होती है? जब हम खुद अपने बारे में अच्छा फील करना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज ऑल्सो द फ्रीडम टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू व्हेन यू वॉन्ट टू डू इट। तो जब हम खुद के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें फ्रीडम मिलती है, हम जो करना चाहते हैं वो चीज हम कर भी पाते हैं। इट इज नेवर एन अमाउंट ऑफ मनी, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो खुद के बारे में अच्छा सोचना, ये
मनी की बात नहीं, मतलब हमारे पास कितने पैसे हैं, अगर ज्यादा पैसे होंगे तभी हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, हम खुद के बारे में कभी भी कहीं भी अच्छा सोच सकते हैं, अपने बारे में अच्छे बिलीफ सिस्टम रख सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी और लैक ऑफ इट इज एन आउटर एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज इन योर हेड। तो ऑथर कहती है कि अगर हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में कुछ लैक है या फिर प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी है या लैक है, वो उन आइडियाज की वजह से ही होता है। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें अपनी लाइफ में मिलता है। जैसे संकल्प से सृष्टि होती है, ये बीके शिवानी की बुक से हमने पढ़ा था। जैसा हम संकल्प रखेंगे, अपने माइंड में जो थॉट्स डालेंगे, वही हमारी सृष्टि में, हमारी लाइफ में वो चीजें फिर एक्सप्रेस होने लग जाती है, लोगों से, सरकमस्टांसेस से। तो इसीलिए अपने सबकॉन्शियस पे हमें काम करना जरूरी है, अपने बिलीफ सिस्टम पे। डिजर्विंग, तो इसमें जो हमने फर्स्ट लाइन पढ़ा था, आई डिजर्व द बेस्ट। तो डिजर्विंग, if we do not accept the idea that we deserve to prosper, then even when abundance falls in our laps, we will refuse it somehow. Look at this example. ऑथर कह रही है कि अगर हम अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते हैं और एबंडेंस हमारी लाइफ में आती भी है, तब हम उसे नकार देते हैं, उसे रिफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। अ स्टूडेंट इन वन ऑफ माई क्लासेस वाज वर्किंग टू इंक्रीज हिज प्रॉस्पेरिटी। ही केम टू क्लास वन नाइट so excited for he had just won $500. He kept saying, I don't believe it, I never win anything. We knew it was a reflection of his changing consciousness. He still felt he did not really deserve it. Next week, he could not come to class as he had broken leg. The doctor bills came to $500. तो ऑथर कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट थे उनकी क्लास में जो कि अपनी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करने के ऊपर काम कर रहे थे। तो एक बार वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, आते हैं, और वो उस टाइम जीतते हैं $500। तो वो बार बार कहते हैं, आई डोंट बिलीव इट, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं तो कभी कुछ जीतता ही नहीं। तो ये रिफ्लेक्शन थी उनकी चेंजिंग कॉन्शियसनेस की। लेकिन फिर भी वो अपने आप को डिजर्विंग नहीं मान पा रहे थे। तो नेक्स्ट वीक वो आ नहीं पाए। उनका जो डॉक्टर का बिल आया वो ही $500 का आ गया। तो मतलब जो अबंडेंस उनके पास आई थी वो वापस चली गई, क्योंकि उन्होंने खुद को डिजर्विंग नहीं माना था। इसीलिए हमें खुद को डिजर्विंग मानना चाहिए कि हम डिजर्व करते हैं जो बेस्ट है उसके लिए। आई डिजर्व द बेस्ट थिंग, जैसे उसमें फर्स्ट एफर्मेशन लिखा गया था। He had been frightened to move forward in a new prosperous direction and felt undeserving, so he punished himself in this way. Whatever we concentrate on increases, so don't concentrate on your bills. If you concentrate on lack and debt, then you will create more lack and debt. तो ऑथर कह रही है कि जिसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो चीज इंक्रीज होती है। तो इसीलिए कभी भी अपने बिल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। अगर बिल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारे बिल्स ही बढ़ेंगे। लैक और डेट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वही चीज आएगी। इसका ऑपोजिट अगर हम अपनी लाइफ में एबंडेंस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम अपने ग्रुप के पोल्स में भी देते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 टाइम्स, जिस पे हम कंसंट्रेट करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में और इंक्रीज करती है। देयर इज एन inexhaustible supply in the universe. Begin to be aware of it. Take the time to count the stars on a clear evening or the grains of sand in one handful, the leaves on one branch of a tree, the raindrops on a window pane, the seeds in one tomato. Each seed is capable of producing a whole vine with unlimited tomatoes on it. Be grateful for what you do have, and you will find that it increases. तो ऑथर यहाँ पे कह रही है कि यूनिवर्स में इनएक्सहॉस्टेबल सप्लाई है, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो उस पे हम अगर ध्यान देना शुरू करें, जैसे आसमान में कितने तारे होते हैं इनफाइनाइट, एक हैंडफुल में कितने ग्रेन्स आते हैं, एक ब्रांच के ऊपर कितने लीव्स है, विंडो प्लेन पे कितने रेन ड्रॉप्स है, एक टमाटो में कितने सीड्स हैं। तो ये सब हम काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा एक सीड इनफाइनाइट टमाटोज को प्रोड्यूस कर सकती है, कि उसकी होल वाइन में इतने सारे टमाटोज आ सकते हैं। तो एक छोटा सा बीज
इतना इनफाइनाइट सप्लाई कर सकता है। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू डू हैव एंड यू विल फाइंड दैट इट इंक्रीजेस। तो हमें हमारे पास जो है उस पर हम ग्रेटफुल होंगे तो हमारी लाइफ में वो चीज इंक्रीज होगी। आई लाइक टू ब्लेस विथ लव all that is in my life now. My home, the heat, water, light, telephone, furniture, plumbing, appliances, clothing, transportation, jobs, the money I do have, friends, my ability to see and feel and taste and touch and walk and to enjoy this incredible planet. तो ऑथर कह रही है कि वो ब्लेस करना चाहती है अपनी लाइफ में, उनके पास जो भी चीज है उसको ब्लेस करना चाहती है विद लव। तो क्या क्या, माई होम, heat, water, light, telephone, furniture, plumbing, appliances, clothing, transportation, jobs, जो मनी है उनके पास, फ्रेंड्स, एबिलिटी टू सी एंड फील, मतलब आईज के लिए, फिर जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, to feel and taste and touch and walk and to enjoy this incredible planet। तो सबके लिए हम ग्रेटफुल फील कर सकते हैं अगर हम उस माइंडसेट से सारी चीजों को देखेंगे। तो हमारा माइंडसेट शिफ्ट होगा फ्रॉम लैक टू abundance। Our own belief in lack and limitation is the only thing that is limiting us. What belief is limiting you? तो जो हमारा बिलीफ है, our own belief in lack and limitation, जो हम खुद ही बिलीव करते हैं अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में, तो वही चीज हमें लिमिट करती है। हमें कोई एक्सटर्नल चीज लिमिट नहीं करती, कोई और नहीं रोकता। हमें जो रोकता है वो खुद हमारे अंदर से ही हमारा बिलीफ सिस्टम। तो ऑथर पूछ रही है व्हाट बिलीफ इज लिमिटिंग यू। तो हमारे खुद के अंदर कौन सा बिलीफ है जो हमें लिमिट कर रहा है, इसके ऊपर आज सोचना है और एनालाइज करके लिखना है। ये आज का होमवर्क। डू यू वांट टू हैव मनी ओनली टू हेल्प अदर्स, देन यू आर सेइंग यू आर वर्थलेस। अगर आपको मनी सिर्फ इसीलिए चाहिए कि आप दूसरों का ही हेल्प करें, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप वर्थलेस है, क्योंकि खुद की भी हेल्प करनी चाहिए हमें। Be sure you are not rejecting prosperity now. If a friend invites you to lunch or dinner, accept with joy and pleasure. Don't feel you are just trading with people. If you get a gift, accept it graciously. If you can't use the gift, pass it on to someone else. Keep the flow of things moving through you. Just smile and say thank you. In this way, you let the universe know you are ready to receive your gift. तो ऑथर कह रहे हैं कि हमें प्रॉस्पेरिटी को रिजेक्ट नहीं करना। अगर कोई इनवाइट करता है तो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करे। सिर्फ ऐसा ना सोचे कि हम दूसरों के साथ ट्रेड ही कर रहे हैं। अगर कोई गिफ्ट देता है उसको ग्रेशियसली एक्सेप्ट किया जाए। अगर खुद यूज नहीं कर सकते तो उसको फिर पास ऑन करना है, लेकिन थैंक यू बोल करके। जो फ्लो ऑफ थिंग्स है वो हमारे से फ्लो करने चाहिए। यूनिवर्स को तब ये पता चलता है कि हम रेडी हैं कि हम अपना गुड रिसीव कर सके। मेक रूम फॉर द न्यू। Make room for the new. Clean out your refrigerator. Get rid of all those little bits of stuff wrapped in foil. Clean out your closets. Get rid of all the stuff you have not used in the last 6 months or so. If you haven't used it in a year, definitely get it out of your room. Sell it, trade it, give it away, or burn it. Cluttered closets mean a cluttered mind. As you clean the closet, say to yourself, I'm cleaning out the closets of my mind. The universe loves symbolic gestures. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास में जो चीजें हैं जो अननेसेसरी है या फिर जो चीजें यूज करने वाली चीज में है, हम उसे यूज नहीं कर रहे किसी वजह से, तो उसे किसी को दे दिया जाए या सेल कर दिया जाए। तो उससे क्या होगा, हम जो क्लीनिंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग हमारे रूम की नहीं है, हमारे क्लोसेट्स की नहीं है, वो क्लीनिंग हमारे खुद के माइंड की है। तो जब क्लीन करा जाए तो उस वक्त की एफर्मेशन बोल सकते हैं, क्लीनिंग आउट द क्लोजेट्स ऑफ माय माइंड। और जो यूनिवर्स है वो सिंबॉलिक जेस्चर्स बहुत पसंद करता है। द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द कॉन्सेप्ट द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज अवेलेबल टू एवरीवन, आई थॉट इट वाज रिडिक्यूलस। तो ऑथर अपना बता रही है कि जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सुना था पहली बार कि अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज अवेलेबल टू एवरीवन, सबके लिए अवेलेबल है, तो उनको रिडिक्यूलस लगा। Look at all the poor people, I said to myself. Look at my own seemingly hopeless poverty. So here, your poverty is only a belief in your consciousness only made me angry.
It took me many years to realize and accept that I was the only person responsible for my lack of prosperity. It was my belief that I was unworthy and not deserving, that money is difficult to come by, and that I do not have talents and abilities that kept me stuck in a mental system of not having. The author पहले पॉवर्टी में थी, मतलब उनकी लाइफ में गरीबी थी। तो उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एबंडेंस ऑफ यूनिवर्स इज अवेलेबल टू एवरीवन, तो उनको काफी रिडिकुलस लगा। और जब उन्होंने ये जाना कि हमारे कॉन्शियसनेस में जो बिलीफ होता है वही रीजन होता है हमारी लाइफ में कुछ का भी, जैसे उनकी लाइफ में पॉवर्टी का, तो उनको काफी गुस्सा आया। और कई साल लग गए उन्हें ये रियलाइज और एक्सेप्ट करने में कि वो खुद ही वही पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है उनकी लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लिए। मतलब अपनी लाइफ में गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद है, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम है कि बिलीफ सिस्टम था कि वो अनवर्दी है या फिर डिजर्विंग नहीं है, मनी बहुत मुश्किल से आती है, या फिर उनके पास में जो टैलेंट्स और एबिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये उनका मेंटल सिस्टम था ऑफ नॉट हैविंग क्या क्या, not having money, not having talents and abilities। तो इस माइंडसेट की वजह से ही उनकी लाइफ में उन्हें पॉवर्टी फेस करनी पड़ी थी। मनी इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट? डू यू बिलीव इट? आर यू एंग्री? आर यू इंडिफरेंट? तो ये एक स्टेटमेंट देकर के ऑथर जानना चाहते हैं कि हमारा क्या रिएक्शन है। स्टेटमेंट है मनी इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट। तो आपको कैसा लग रहा है ये स्टेटमेंट सुन करके? आपका क्या रिएक्शन है? क्या आप इस पे बिलीव करते हैं? क्या आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आप इनडिफरेंट हैं? आर यू रेडी टू थ्रो दिस बुक अक्रॉस द रूम? किसी किसी को इतना गुस्सा आ सकता है, हो सकता है कि वो ऑथर की बुक को ही उठा करके रूम से बाहर फेंक दे। क्या आप वैसे पर्सन में से है? इफ यू हैव एनी ऑफ दीज रिएक्शंस, गुड। अगर ऐसे रिएक्शंस है तो अच्छी बात है। आई हैव टच्ड समथिंग डीप इनसाइड यू, दैट वेरी पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस टू ट्रुथ। This is the area to work on. It is time to open yourself to the potential of receiving the flow of money and all good। तो author कह रही है अगर ऐसी रिएक्शन है तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर कुछ डीप टच किया है, कुछ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस होती है तो उसे हमें रिलीज करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, तो वो रेजिस्टेंस हमें रिलीज करनी है। Love your bills. It is essential that we stop worrying about money and stop resenting our bills. Many people treat bills as punishments to be avoided if possible. A bill is an acknowledgement of our ability to pay। तो लव योर बिल्स में ये कहा गया है कि बहुत लोग होते हैं जो कि चिंता करते हैं जब उन्हें कुछ पे करना पड़ता है। तो ऑथर कह रही है कि स्टॉप रिजेंटिंग आवर बिल्स। तो फिर से हमें क्या पता चलता है कि हमारे अंदर वो एबिलिटी है पे करने की, तभी तो हमारे पास ये बिल है, हमने कुछ परचेज किया है। The creditor assumes you are affluent enough and gives you the service of the product first। I bless with love each and every bill that comes into my home। I bless with love and stamp a small kiss on each and every check I write। If you pay with resentment, money has a hard time coming back to you। If you pay with love and joy, you open the free-flowing channel of abundance। Treat your money as a friend, not as something you wad up and crush into your pocket। और ये कह रही है कि जो हम पे करते हैं उसको रिजेंटमेंट के साथ अगर हम पे करेंगे तो वो बहुत मुश्किल से वापस हमारे पास आएगा, लेकिन अगर हम उसे बहुत प्यार से खुशी खुशी पे करेंगे तो हमारे अंदर एक फ्री फ्लोइंग चैनल ऑफ एबंडेंस चलता रहेगा। तो अपनी मनी को हमें ट्रीट करना एक फ्रेंड के तरह। ऐसे जो बिल्स मिलते हैं उनको बैट अप करके क्रश करके पॉकेट में नहीं डालना, उसको भी बहुत प्यार से हैप्पीली जॉयफुली हमें पे करना है, क्योंकि हमारे अंदर वो एबिलिटी है पे करने की। योर सिक्योरिटी इज नॉट योर जॉब एंड योर बैंक अकाउंट और योर इन्वेस्टमेंट्स और योर स्पाउस और पेरेंट्स। योर सिक्योरिटी इज योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद द कॉस्मिक पावर दैट क्रिएट्स ऑल थिंग्स। तो हमारी सिक्योरिटी क्या है? हमारी सिक्योरिटी कोई जॉब में, बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट ये सब में नहीं है। हमारी सिक्योरिटी उसमें है जब हम कनेक्ट कर पाते हैं उस कॉस्मिक पावर से जिसने की सारी चीजें बनाई हैं, जिसने सारा जगत बनाया।
तो उस कॉस्मिक पावर के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं, गॉड, जीसस, अल्लाह, जो भी बोलते हैं, यूनिवर्स, तो उसके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं उसमें हमारी सिक्योरिटी लाई करती है. आई लाइक टू थिंक द पावर within me that breathes in my body is the same power that provides all the time, just as easily and simply. The universe is lavish in our that it is supplied with everything we need unless we choose to believe it to be contrary. तो ऑथर का ये मानना है कि जो उनकी बॉडी के अंदर में जो ब्रीदिंग एबिलिटी है, जिसकी वजह से उन्हें ये सप्लाई प्रोवाइड हो रही है, उसी से सारी चीजें उन्हें मिलती है अपनी लाइफ में रहने के लिए इजीली और सिंपली. ये यूनिवर्स लेविश है, अबंडेंट है, और हमारा ये बर्थ राइट है कि हम जो भी चाहते हैं वो चीज हम पा सकते हैं, अनलेस वी बिलीव इट टू बी कॉन्ट्ररी. मतलब जब अगर हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो जरूर पॉजिटिव ही होगा, जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा. I bless my telephone with love each time I use it, and I affirm often that it brings me only prosperity and expressions of love. I do the same with my mailbox, and each day it is filled to overflowing with money and love, letters of all kinds from friends and clients and far off readers of my book. The bills that come in, I rejoice over, thanking the companies for trusting me to pay. I bless my doorbell and the front door, knowing that only good comes into my home. I expect my life to be good and joyous, and it is. तो ऑथर अपना बता रही है कि वो हर एक चीज को ब्लेस करती है, उनके टेलीफोन को, मेल बॉक्स को, उनके बिल्स को, और वो एक्सपेक्ट करती है कि लाइफ गुड है, जॉयस है, एंड इट इज, और ये सच में है. तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं. कल हम स्टार्ट करेंगे. दीज आइडियाज आर फॉर एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. यू कैन शेयर योर फीडबैक नाउ. Shanti Karuna sister. ओम शांति. फीडबैक से पहले तो आपको थैंक यू कि बहुत दिन हो गए थे, स्टार्ट नहीं हुआ था सेशंस, सभी बिजी थे कुछ ना कुछ में. तो थैंक यू, आज हमने स्टार्ट किया वापस. एंड सेशन तो सारा ही बहुत अच्छा था. जो मुझे और भी पर्सनली बहुत पसंद आया, इट वाज मनी इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट. सो ये जो अबेंडेंस का प्रिंसिपल है, हम कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न होने के कारण, या जो भी पैटर्न्स हमने अपने पेरेंट्स से लिए हैं या सोसाइटी से लिए हैं, वो एक लैक वाला अंदर रहता है, कहीं ना कहीं अनडिजर्विंग वाला भी रहता है. तो ये जो हम अबेंडेंस की तरफ जा रहे हैं और एक न्यू पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं कि यूनिवर्स लैविश है, अबेंडेंट है, ये चीज बहुत अच्छी लगती है. So money is the easiest thing to demonstrate is wonderful. So yeah, this is my takeaway for today. Thank you. Thank you, Anuradha sister. अब आपसे भी कुछ सुनेंगे, काफी दिन हो गए हैं. जी ओम शांति. Thank you for starting this session again. And it was very beautiful session. ये जो abundance का जो चैप्टर है और हमारे रिलेशनशिप विद मनी, सो ये हमारा कोर बिलीव्स के कारण ही हम अभी भी गरीब लाइक मिडिल जीते हैं. तो ये मेरा टेक अवे है कि ऑथर ने जो बोला है कि आपके जीवन में जो भी लैक है वो आप किसी और को ब्लेम नहीं, या मिडिल क्लास लाइक वाई क्यों मिलती है, कि मेन कॉज है कि हम सोचते हैं कि हमें डिजर्व, हम वी डोंट डिजर्व टू बी लाइक टू एक्सपेक्ट abundance in our life. तो हमें लाइक जो आदतें बनती हैं, खाने पीने की आदतें होती है, उठने बैठने की आदतें होती है, वैसे गरीबी की भी आदत होती है कि हम आगे नहीं सोचना चाहते, हम इतने में ही खुश है, ऐसे ही हम जीते हैं.
लेकिन ये आदत है, ये आदत सोच से बनती है। अगर आपके जीवन में गरीबी है तो आपकी सोच में गरीबी है, इसीलिए जीवन में गरीबी है। वो तो मिरर है एक्चुअली। तो वो कह रहे थे कि घर की सफाई करे और जो भी चीजें हैं तो वो निकाल दें। तो ये एक एक्चुअली खुद का जो आत्मा में जो कमी है, जो भी है, वही उसका घर में जो जैसा है वही रिफ्लेक्ट करता है। अगर अंदर ठीक नहीं है तो बाहर भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अंदर क्लटर है तो बाहर भी क्लटर रहेगा। तो ये उन्होंने जो बोला है, अपने चेक कीजिए फ्रिज, क्लोथ्स। तो ये बहुत टेक फॉर ग्रांटेड, बट एक्चुअली इसी से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हम अपनी जो स्टक एनर्जी है ऑफ पॉवर्टी, ऑफ लो सेल्फ वर्थ, इससे हम बाहर निकले। कि हर दिन हम ब्लाइंड हो जाते हैं, जस्ट लाइक कलर ब्लाइंड। हम अपनी कमियों पे ही ब्लाइंड हो जाते हैं, हमारे अंदर जितने क्लटर है उसी में हम देखते ही नहीं। तो ये आंखें खोलने का चैप्टर था अबाउट मनी, नॉट जस्ट मनी बट abundance in general. So Om Shanti, thank you. थैंक यू सो मच अनुराधा सिस्टर। बहुत अच्छे लगे आप लोगों के टेक अवेज सुनकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।